Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our lecture number 12 from chapter 11. The topic is multiplication law of probability for two dependent events. In previous lecture we have discussed the multiplication law of probability for two independent events. Today we are going to discuss multiplication law of probability for two dependent events. Let A and B are two dependent events, then the probability that the events A and B will both occur equals the probability that event A occur multiplied by the conditional probability of B when A has already been occurred, or the probability that event B occur multiplied by the conditional probability of A when B has already been occurred. Symbolically, it is written as probability of A and B is equal to probability of A into probability of B given A, or probability of A and B is equal to probability of B into probability of A given B. Let event A and B defined in joint sample space S of two overlapping sample space S1 and S2. S1 is the sample space for A and S2 is the sample space for B, and S is the joint sample space of S1 and S2, and these two events are overlapping. Let the sample points in joint sample space S are n. Out of them, M1, M2 and M3 sample points are event A, B and A intersection B respectively, where n of S is equal to n of A is equal to M1, n of B is equal to M2 and n of A intersection B is equal to M3. By definition of probability, probability of A is equal to n of A over n of S, and n of A is equal to M1 and n of S is equal to n. We have M1 probability of A is equal to M1 over n, which is the equation number 1. Probability of B is equal to, according to the probability definition, NB over NS. NB is equal to M2 and NS is equal to N. We have the equation probability of B is equal to M2 divided by N. This is the equation number 2. And probability of A intersection B is equal to n of A intersection B divided by n of S. n of A intersection B किसके इक्वल है, M3 के इक्वल है, और n of S किसके इक्वल है, n के इक्वल है. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, M3 डिवाइडेड बाय n, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई है. Now probability of A given B, it is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. ये क्या है, conditional probability of A given B. और probability of A intersection B की वैल्यू क्या है हमारे पास, from equation number 3 M3 divided by N, और probability of B की क्या वैल्यू है हमारे पास, from equation number 2 M2 divided by N. तो N और N कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा M3 divided by M2, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे. Now probability of B given A, probability of A intersection B divided by probability of B. B given A, के probability of B given that event A already occurred. ठीक है, तो conditional probability of B given A, it is equal to probability of A intersection B divided by probability of A. M और probability of A intersection B आपका किसके इक्वल है, M3 over N के, और probability of A किसके इक्वल है, M1 divided by N. N से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास इक्वल आ जाएगा M3 divided by M1, और इसको हम इक्वेशन नंबर by multiplying and dividing right hand side of equation 3 by M1,
we get probability of A intersection B is equal to M3 divided by N into M1 divided by M1. M1 से उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे इक्वेशन 3 को और M1 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं M1 divided by N into M3 divided by M1. M1 divided by N, it is equal to probability of A, and M3 divided by M1, it is equal to probability of B given A. Therefore, using equation 1 and 5, we have probability of A intersection B, it is equal to probability of A into probability of B given A. इसको हम equation number A कहेंगे. Sorry. Again, multiplying and dividing right hand side of equation 3 by M2, we get probability of A intersection B, it is equal to M3 divided by N into M2 divided by M2. M2 से multiply भी करेंगे equation 3 को और M2 से divide भी करेंगे. It is written as M2 divided by N into M3 divided by M2. तो M2 डिवाइडेड बाई N हमारे पास इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ B के, और M3 डिवाइडेड बाई M2 दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B. तो इसको हम लिख सकते हैं कि using equation 1 and 4, probability of A intersection B, it is equal to probability of B into probability of A given B. तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर B. Now again, joining equation A and B, we get the desired result. Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B given A, or probability of A intersection B is equal to probability of B into probability of A given B. This is the multiplication theorem for dependent events. Example 11.22. From a well-shuffled pack of 52 cards, 2 cards are drawn in succession without replacement. Find the probability that the first card is a king and the second is a queen. Let A be the event that first card drawn is a king and B be the event that second card drawn is a queen. 52 टोटल कार्ड्स हैं और उसमें से 2 कार्ड जो हैं वो ड्रा किए गए हैं और वो विदाउट रिप्लेसमेंट हैं कि कार्ड हमने निकाले और उनकी जगह हमने कोई कार्ड डाला नहीं है. ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट आपने 2 कार्ड जो है वो ड्रा किए गए. तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट कार्ड जो है वो एक साथ दोनों नहीं निकाले गए, बल्कि पहले एक निकाला गया फिर दूसरा निकाला गया. तो वो पूछते हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट कार्ड जो है वो किंग है और दूसरा कार्ड जो निकाला गया वो क्वीन है. तो इसको कुछ इस तरह से हम करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग किंग ऑन द फर्स्ट ड्रा वो क्या है, ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. और किंग कितने होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में, आपके पास 4 होते हैं और टोटल कार्ड्स आपके पास 52 हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय 52. इसी तरह से जब एक कार्ड निकाल लिया गया जो कि किंग था पैक में से, तो पीछे टोटल कार्ड कितने बच गए, क्योंकि हमने उस जैसा कार्ड उसमें दोबारा डाला नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है. ठीक है, तो पीछे टोटल कार्ड्स कितने बच गए, 51. तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए. ए क्या थी हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कि वो फर्स्ट कार्ड जो ड्रा किया गया वो किंग है. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या थी कि वो कार्ड दूसरा जो ड्रा हुआ वो क्या है, क्वीन है. तो हम इसको कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, और ये इक्वल होगा किसके, क्योंकि 4 ही क्वींस होती हैं 52 कार्ड्स में. तो 4 डिवाइडेड बाय 51, क्योंकि एक कार्ड जब किंग निकल गया तो पीछे 51 कार्ड्स आपके पास रह गए. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए किसकी इक्वल हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 51. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए. 4 डिवाइडेड बाय 52 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या आई, 4 डिवाइडेड बाय 51. तो ये आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 663. Next example is 11.23.
The two balls are drawn in succession from a bag containing 5 white and 8 black balls. What is the probability that both balls are black and both balls are white? दोनों के लिए आपने फाइंड करना है। पहले ब्लैक के लिए कि दोनों की दोनों ब्लैक बॉल्स हैं, फिर आपने वाइट के लिए कि दोनों की दोनों जो ड्रॉ हुई बॉल्स वो क्या हैं, वो वाइट हैं। इसमें हमने पहले ये देखना है कि W1 जो है वो हमारी वाइट बॉल को फर्स्ट ड्रा पे जो है वो शो कर रहा है। फर्स्ट टाइम जो बॉल ड्रा की गई वो वाइट बॉल है, तो उसको W1 से हम डिनोट करेंगे। और W2 जो है वो है वाइट बॉल ऑन सेकेंड ड्रा, और B1 है ब्लैक बॉल ऑन फर्स्ट ड्रा एंड B2 इज द ब्लैक बॉल ऑन सेकेंड ड्रा। अब टोटल बॉल्स कितनी हैं? 5 वाइट हैं और 8 जो हैं वो ब्लैक हैं। टोटल बॉल्स 13 बॉल्स हैं। ठीक है, टोटल कितनी बॉल्स हैं एक बैग के अंदर? 13 बॉल्स हैं, और उसमें से ड्रॉ कितनी की गई? 2 बॉल्स ड्रॉ की गई। अब देखें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 वाइट बॉल ऑन फर्स्ट ड्रॉ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वाइट बॉल कितनी है टोटल बैग में? 5 हैं, और टोटल बॉल्स कितनी हैं? 13 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 क्या हो जाएगी? 5 डिवाइडेड बाय 13। इसी तरह से W2 प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1 क्या होगी कि W2 जब एक बॉल निकल गई तो पीछे टोटल कितनी रह गई? 12 बॉल्स, और वाइट बॉल भी एक निकल गई तो पीछे वाइट बॉल्स कितनी रह गई? 4। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1 इट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरह से ब्लैक बॉल्स के लिए भी हम फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या होगा? अब उसमें 8 है और टोटल बॉल्स कितनी हैं? 13 है, तो 8 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन B1 क्या होगा? क्योंकि टोटल बॉल्स में जब एक ब्लैक निकल गई है तो पीछे 12 बॉल्स रह गई हैं, और एक ब्लैक निकल गई तो ब्लैक बॉल्स भी एक कम हो गई, पीछे 8 की बजाय कितनी रह गई? 7 रह गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन B1 आपके पास क्या आ गई? 7 डिवाइडेड बाय 12, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमने फर्स्ट फाइंड करना है कि बोथ बॉल्स आर वाइट। ठीक है, बोथ का लफ्ज आया, इंटरसेक्शन यूज होगा। probability of W1 intersection W2 it is equal to, according to the multiplication theorem of dependent events, probability of W1 into probability of W2 given W1। अब W1 की क्या प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई थी? 5 डिवाइडेड बाय 13। और प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1 कितनी रह गई पीछे हमारे? 4 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 39। नेक्स्ट उसने कहा कि दोनों की दोनों बॉल्स जो हैं दे आर ब्लैक। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन B1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या था? 8 डिवाइडेड बाय 13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन B1 क्या आया था हमारे पास? 7 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 14 डिवाइडेड बाय 39। The next example is 11.28. From a well shuffled pack of 52 cards, 2 cards are drawn. Find the probability that the first card is a queen and the second is a king if the first card is replaced और second उसका part है not replaced। के 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 2 कार्ड्स ड्रा हुए, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट कार्ड जो है वो क्वीन है और सेकंड कार्ड जो है वो किंग हो, और फर्स्ट तो रिप्लेस हुए लेकिन सेकंड पार्ट में क्या है कि वो रिप्लेस नहीं हुए, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट केस है। फर्स्ट जो है वो विद रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। लेट ए डिनोट द इवेंट फर्स्ट कार्ड इज क्वीन and B denote the event that the second card is a king. If the first card is replaced, अब फर्स्ट ये है ना कि कार्ड रिप्लेस हुआ है। A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जब रिप्लेस होगा तो A और B क्या हैं? दे आर इंडिपेंडेंट।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं आई। वो अगर उसी जैसा कार्ड उसके अंदर दोबारा डाल दिया गया है, एक कार्ड निकाला गया, किंग था या क्वीन, उसने फर्स्ट कार्ड का है क्वीन है, क्वीन अगर निकाल ली गई उसमें से और उसी जैसी उसके अंदर डाल दी गई, तो फिर जाहिर है कार्ड दूसरा भी उसमें से निकालें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वो इवेंट्स क्या कहलाएंगे, दे आर इंडिपेंडेंट। तो वो कार्ड जो है वो इंडिपेंडेंट हैं कि वो एक दूसरे पे, उनका एक का निकालना दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो रिप्लेस हो रहे हैं कार्ड। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा इसमें मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट वो हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास इवेंट्स जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, हमारे पास क्वीन है, क्वीन 4 होती हैं और टोटल कार्ड कितने हैं 52, 4 डिवाइडेड बाय 52। इसी तरह से सेकंड कार्ड जब निकाला गया तो वो भी किंग हमारे पास 4 होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में, और टोटल कार्ड्स भी 52 ही हैं, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया था कार्ड उसका, क्वीन की जगह उस जैसा डाल दिया था। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय 52। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाय 169। अच्छा जी, सेकंड उसमें है नॉट रिप्लेस्ड, कि कार्ड को रिप्लेस नहीं किया गया। अब इसमें क्या होगा कि डिपेंडेंट इवेंट को शो कर रहा है कि अगर रिप्लेस नहीं किया गया तो जाहिर है एक कार्ड निकाल लिया गया, तो दूसरे कार्ड उसमें क्वीन निकाला है फर्स्ट, तो उसमें क्या हुआ, एक क्वीन कम हो गई और टोटल में भी कार्ड्स में कमी आ गई। तो क्या है, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट इवेंट हो गए कि एक इवेंट जो है या एक कार्ड का निकलना जो है वो दूसरे को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा इसमें थ्योरम हमारा यूज होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसमें देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है, 4, क्योंकि क्वीन 4 होती हैं और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 हैं। फर्स्ट उसने कहा कार्ड जो ड्रा किया गया वो क्वीन है, 4 डिवाइडेड बाय 52 हो गया। तो सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। अब बी गिवन है क्या होगा कि दूसरा कार्ड जो है वो किंग है, वो तो किंग तो 4 है उसमें, लेकिन एक क्वीन निकलने से कार्ड एक कम हो गया, उसमें 52 की बजाय अब कितने हो गए 51। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 डिवाइडेड बाय 51। तो इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर आता है 4 डिवाइडेड बाय 663। नेक्स्ट एग्जांपल 11.29 एग्जांपल है, अ बैग contains 8 red, 5 white and 7 black balls. If 3 balls are drawn, find the probability that they are drawn in the order red, white, black if each ball is replaced and not replaced. अब इसमें देखें, बॉल्स इन अ बैग कितनी हैं टोटल, रेड बॉल्स हैं 8, वाइट हैं 5, ब्लैक 7 और टोटल बॉल्स कितनी हैं 20 बॉल्स हैं बैग के अंदर। अब उसमें से 3 बॉल जो हैं वो ड्रॉ की गई, लेकिन वो ऑर्डर में ड्रॉ की गई, और ऑर्डर क्या बताया उसने, रेड है, और ऑर्डर उसने क्या बताया इसमें, रेड, वाइट और ब्लैक, पहले रेड फिर वाइट और फिर ब्लैक, इस ऑर्डर में बॉल्स जो हैं तीनों ड्रॉ की गई। R denote the event that red ball on first draw, white W denote the event that white ball on second draw, and B denote the event that black ball on third draw. ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्या है कि रिप्लेस्ड, कि बॉल जो है वो निकाली गई और रिप्लेस की गई, यानी उनकी जगह उन जैसी बॉल जो हैं वो डाल दी गई दोबारा बैग के अंदर। If each ball is replaced, then R, W and B यानी red, white और black balls are independent। तो independent events हैं, तो इसमें क्या होगा, probability of R intersection W intersection B, और ये इक्वल किसके होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या है, कितनी रेड बॉल्स हैं 8 है और टोटल कितनी हैं 20 बॉल्स हैं, तो क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 20। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स क्या है, इसमें वाइट बॉल्स 5 हैं, टोटल बॉल्स 20 हैं, तो 5 बाय 20। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है, इसमें 7 ब्लैक बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स 20 हैं, तो क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 20। तो इस सब को सॉल्व करने से आपके पास आंसर
7 डिवाइडेड बाई 200, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है नॉट रिप्लेस्ड। अब नॉट रिप्लेस की जहाँ पे बात आ रही है, इसका मतलब है कि इवेंट्स आर डिपेंडेंट। ठीक है, जब उस जैसे बॉल जो है उसमें डाली नहीं जाएगी तो बॉल टोटल में भी कम हो जाएगी और जिस रंग की निकाली गई पहले वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन डब्ल्यू इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू गिवन आर एंड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डब्ल्यू आर। अब इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 8 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि पहले रेड निकाली गई, उसने हमें ऑर्डर बताया हुआ है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू गिवन आर, यानी व्हाइट बॉल उसमें कितनी, व्हाइट तो 5 है लेकिन टोटल कितनी रह जाएंगी, उसमें 19 बॉल्स रह जाएंगी, एक उसमें से निकाल दी गई रेड बॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स गिवन डब्ल्यू आर, व्हाइट और रेड की वजह से जो उसको ब्लैक बॉल्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 7 ब्लैक बॉल्स हैं लेकिन टोटल कितनी रह जाएंगी, एक उसमें से रेड निकल गई और एक व्हाइट निकल गई, तो पीछे कितनी रह गई, टोटल 18 बॉल्स रह गई। तो इस तरह से ये आपके पास ये कौन सा थ्योरम है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, ये इसमें लगाएंगे और ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 171। Question 11.26 from your exercise. A box contains 9 tickets number 1 to 9. If 3 tickets are drawn from the box one at a time, find the probability that they are alternately either odd, even, odd or even, odd, even. In a ticket number from 1 to 9 in a box that are odd and 5 odd and 4 even, 5 odd टिकट्स हैं और 4 जो हैं वो क्या है, इवन है। अब देखें इसमें नंबर 1 से 9 में देखें ना, 4 इसमें क्या है, इवन है और 5 जो है उसमें ऑड नंबर्स हैं, 5 ऑड नंबर्स 4 इवन नंबर्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने क्या फाइंड करना है, ऑड इवन ऑड, तो किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन फर्स्ट ऑड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इनटू गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इवन। ठीक है, अब इसके इक्वल है। अब इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या है, इसमें ऑड नंबर्स कितने हैं, इसमें 5 हैं, तो 5 और टोटल नंबर कितने हैं, 9 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें देखें, अब एक तो उसमें से ऑड नंबर निकल गया, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आपने फाइंड करनी, इवन टोटल नंबर कितने हैं, 4 हैं, और एक कार्ड ऑड उसमें निकल गया, तो पीछे टोटल में से कितने कार्ड उसमें कितने नंबर रह गए, कितने टिकट्स रह गए, वो 8 रह गए। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड। अब एक ऑड निकल गया है, पीछे कितने ऑड रह जाएंगे, 4, और टोटल में से भी एक ऑड निकल गया, एक इवन निकल गया टिकट। ठीक है, अब इसमें कितने रह गए, पीछे 9 में से 7 रह गए, तो इसको हम इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑड इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड गिवन फर्स्ट इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन फर्स्ट इवन सेकेंड ऑड। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी, इवन नंबर्स कितने हैं, 4 हैं, 4 और टोटल टिकट्स कितने हैं आपके पास, 9 है, 4 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड जब आपने फाइंड करना है तो ऑड इसमें कितने हैं, 5 हैं, लेकिन एक इवन निकल गया, तो टोटल टिकट्स जो हैं वो कितने रह गए पीछे, 8, तो 5 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट इवन के लिए जब आप फाइंड करेंगे तो 4 इवन में से एक इवन निकल गया, तो पीछे कितने रह गए, 3 इवन रह गए, और टोटल कार्ड भी एक इवन निकल गया, फिर एक ऑड निकल गया, तो पीछे कितने रह गए, टोटल टिकट्स कितने रह गए, 7, तो ये आ जाएगी 3/7 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब दोनों प्रोबेबिलिटीज जब आपके पास आ गई हैं तो उसने क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इवन ऑड और इवन ऑड इवन,
और है इसमें, तो क्या है कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इवन ऑड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑड इवन, ये ऑर्डर उसने बताया। ठीक है, अब फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई है 20 डिवाइडेड बाय 126 प्लस सेकंड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई है 15 डिवाइडेड बाय 126, ये हमारे पास 5/18 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज से वो है 11.34। क्वेश्चन है if A contains 5 red balls and 3 white balls and B contains 2 red balls and 6 white balls, if the ball is drawn from each urn, what is the probability that they are both of the same color? If 2 balls are drawn from each urn, what is the probability that all 4 balls are of the same color? अब इसमें दो पार्ट्स हैं, दो चीज़ें उसने पूछी हैं। पहले तो प्रोबेबिलिटी जो है उसने पूछी है इफ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच अर्न व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ ऑफ सेम कलर। फर्स्ट में सेम कलर, और दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि जितनी भी उसमें 4 बॉल्स निकाली गई वो सारी जो हैं वो सेम कलर में है। अच्छा, ये आपने फाइंड करना है। अर्न किसको कहते हैं? अर्न जो गुल्लक सी होती है जिसमें पैसे जमा किए जाते हैं, गल्ला जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो अर्न ए जो है उसमें आपके पास अर्न ए में कितनी रेड बॉल्स हैं और कितनी वाइट बॉल्स हैं? 5 रेड बॉल्स हैं और 3 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, टोटल बॉल्स हैं उसके अंदर 8। अर्न बी जो है उसमें 2 रेड बॉल्स हैं और 6 जो हैं वो वाइट बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स हैं 8। ठीक है, अब लेट A1 डिनोट रेड बॉल्स फ्रॉम अर्न ए and A2 denote red ball from urn B. B1 denote white ball from urn A and B2 denote white ball from urn B. इसको हमने इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर दिया। If a ball is drawn from each urn, हर अर्न से, हर गले से एक एक बॉल ड्रा किया गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या होगी? वाइट बॉल क्या है? डिनोट रेड बॉल फ्रॉम अर्न ए। अब रेड बॉल्स अर्न ए में कितनी है? 5 है, और टोटल बॉल्स कितनी है? 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या हो जाएगी? 5 डिवाइडेड बाय 8। इस तरह से A2 डिनोट रेड बॉल फ्रॉम अर्न बी, अर्न बी से रेड बॉल को डिनोट कर रहा है A2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या हो जाएगा? टोटल रेड बॉल्स, सॉरी टोटल जो रेड बॉल्स हैं अर्न बी में वो कितनी है? 2 हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, और टोटल बॉल्स 8 हैं। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 किसको शो कर रहा है? वाइट बॉल फ्रॉम अर्न ए, तो वाइट बॉल्स अर्न ए में कितनी है? 3 हैं, और टोटल बॉल्स 8 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 जो है, B2 किसको शो कर रहा है? वाइट बॉल फ्रॉम अर्न बी, वाइट बॉल्स अर्न बी में कितनी है? 6 हैं, और टोटल बॉल्स हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 8। तो A1 इंटरसेक्शन A2 क्या है हमारे पास? रेड बॉल फ्रॉम अर्न ए एंड रेड बॉल फ्रॉम अर्न बी। B1 इंटरसेक्शन B2 क्या होगा? वाइट बॉल फ्रॉम अर्न ए एंड वाइट बॉल फ्रॉम अर्न बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या है? 5/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या है आपके पास? 2 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 32। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 किसकी इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 है 6 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आंसर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 32। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स ऑफ द सेम कलर, कि दोनों बॉल्स जो हैं वो सेम कलर की हैं, यानी या तो दोनों ब्लैक होंगी या आ रहा है उसमें और आ रहा है। ठीक है, तो या दोनों फिर वाइट होंगी, या दोनों वाइट हैं या दोनों ब्लैक हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 हो जाएगा, और ये इक्वल किसके आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 फाइंड किया हमने, किसके इक्वल है? 5 डिवाइडेड बाय 32 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 किसके इक्वल है? 9 डिवाइडेड बाय 32। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 16। Girls, this is your home task today. Question number 11.27, 11.35, 11.36, 11.37 and 11.40. These are related to these examples. Solve these questions and send me in a subject group.